بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول کی شروع ہو رہی ہے دوسری قسط من ماہل کی۔ تو جلدی شروع کرتے ہیں آج کی اس کی دوسری قسط کو۔ دانیہ اس وقت سیف کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ بیڈ پر رکھے گولڈن اور وائٹ کلر کے فراک سمیت میک اپ، جولی اور شوز کو دیکھتی وہ پریشانی کے عالم میں ہونٹوں کو چبا رہی تھی۔ ابھی وہ اسی انسان میں بیٹھی تھی جبھی اس کی فون پر اسلان کی کال آنے لگی۔ پریشانی میں اس کی کال نہ اٹھا پائی تھی۔ بیک وقت روم میں سیف داخل ہوا۔ دانیہ تم ابھی تک تیار نہیں ہو، مولوی صاحب آنے والے ہوں گے۔ دانیہ نے ایک نظر سیف کی جانب دیکھا جو سفید شلوار میں مبلوس تھا۔ سیف مجھے سب اچھا نہیں لگ رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ہم دونوں کچھ غلط تو نہیں کرنے جا رہے۔ سیف نے آخری ایک نظر دانیہ کی چہرے کو دیکھا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھا۔ مجھے صرف اس سوال کو جواب دو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ سیف نے مزید آگے بڑھتے ہوئے دانیہ کو بازوؤں سے پکڑا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں۔ تو پھر یہ ڈر کیسا؟ آئے سو میں تم پر کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا۔ تمہارے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو، میں سب کو منا لوں گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، ٹھیک ہے نا؟ سیف کے کہنے اور دانیہ کو سر پہ ہلا گی۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، انتظار نہ ہی ہو رہا اور مجھ سے۔ سیف نے دانیہ کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بے باک لہجے میں کہا تھا کہ دانیہ کے کانوں کی لوح تک سر پڑ گئی اور ایک دم سیف کو پیچھے دکھا دیا جو اس پر جھکا اس کے کان میں بے باک سرگوشی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے اب آپ جائیں، میں نے تیار ہونا ہے۔ جان نہ جاؤں تو؟ سیف جائیں نا؟ دانیہ تنگ ہوتے ہوئے سیف کو مسکراتے ہوئے دانیہ کو آنکھ مارتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دانیہ لال چہرہ لیے بیڈ پر فراک اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دانیہ واش روم میں نکلی تو شیشے کے سامنے آئی تھی گولڈن اور وائٹ کلر کے امتزاج سے بنا فراک۔ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑی جولی اٹھائی، کانوں میں باری آویزیں پہنے، اس نے گلے میں گلو بند پہنا، ہاتھوں میں چوڑی بنے۔ اس نے میک اپ کے نام پر ناری لبوں کو لال رنگ سے رنگا تھا اور گہری ہیلز آنکھوں میں کاجل ڈالتے، بورے بالوں کا جوڑا بناتے، بیڈ پر پڑا دوپٹہ سر پر اوڑھتے۔ اس نے بیڈ پر پڑے ہی گولڈن کلر کے خصے پہنے لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ سیف کو واضح تھی، فون پر دوبارہ اسلان کی کال آنے لگی۔ اس بار کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اسلام بھائی، دانیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کہاں تھی تم دانیہ؟ کتنی کالز کر رہا ہوں میں، تمہیں معلوم ہے کتنا پریشان ہو رہا تھا تمہیں لے کر، بس اسی ابھی گھر فون کرنے کا ہی والا تھا۔ اسلان تھوڑے سخت لیکن فکر مند لہجے میں گویا۔ اسلان بھائی، وہ دراصل میں پڑھائی میں مصروف تھی، فون سائلنٹ پر تھا اس لیے دیکھ نہیں پائی۔ دانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا۔ تمہیں ہزار بار کہا ہے مجھے بھائی مت کہا کرو، میں نہیں ہوں تمہارا بھائی۔ اسلان دانت پیستے ہوئے گویا۔ بھائی نہیں ہوں تو پھر کیا کہوں؟ دانیہ نے آنکھیں گھماتے پوچھا۔ اسلان کہو صرف دعا، اور دوبارہ کبھی تمہارے منہ سے اپنے لیے بھائی لفظ نہ سنوں۔ گوٹ مائی پوائنٹ؟ جی سمجھ گئی، میرا مطلب اسلان ابھی مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے تو پھر بات ہوتی ہے۔ دانیہ نے جلدی سے کہہ کر جان چھڑانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم، اینڈ جب میں بھی کال کروں اٹھانا، میں دیر مت کرنا۔ اسلان نے کہتے فون کاٹ دی کہ دانیہ نے شکر کیا۔ دانیہ بچی نہیں تھی، اسلان کی نگاہوں کو خود سمجھتی تھی۔ بے شک اسلان کی کوئی بری نگاہ نہیں تھی اور اس پر اور اس کی شادی کا خوشمند تھا۔ گھر والے بھی ان دونوں کا نام اکثر ایک ساتھ لیتے تھے، لیکن دانیہ نے کبھی کوئی گرین سگنل نہیں دیا تھا۔ اسلان بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی اور اسی انصاف میں بیٹھی تھی جب اس سیف کمرے میں داخل ہوا۔ دانیہ، قاضی صاحب آگے ہیں۔ سیف نے ایک نظر دانیہ کی جانب دیکھا تو گویا اس سے نکاح ہٹانا ہی بھول گیا۔ شاید ہی اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہو اور ٹرانس کیفے میں دیکھنے لگا۔ دانیہ کی بات سنتے ہی ہوش میں آیا تھا۔ جی چلے، میں تیار ہوں، دانیہ نے نگاہ جھکاتے ہوئے دیا جبکہ سیف سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دانیہ شاہنواز ولد شاہنواز، آپ کا نکاح سیف مرزا ولد سیف مرزا کے ساتھ باوس سکہ راجوت حق میں طے گیا ہے، آپ قبول ہے؟ قاضی سے منہ سے شاہنواز کا نام سن کر سیف حیران ہوا تھا۔ شاہنواز تو اس کے چاچو کا نام بھی تھا، وہ کہیں اس کے چاچو کی بیٹی تو نہیں؟ لیکن اگلے ہی پل اس نے اس حال کو دور جھٹکا تھا۔ دانیہ شاہنواز ولد شاہنواز، آپ کا نکاح سیف ولد سیفیان مرزا کے ساتھ باوس سکہ راجوت حق آپ قبول ہے؟ دوسری مرتبہ پوچھنا دانیہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی، ایک نظر سیف کی جانب دیکھا جو اس کا منتظر تھا۔ جی قبول ہے۔ تین مرتبہ وہ یہ فکر دہراتے اپنی آنکھوں سیف کے سپرد کر گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو جانے سیف؟ سیف دانیہ کے قریب ہی صوفے پر جمع ہوتا بولا کہ سیف کی پوچھنے پر ہی دانیہ پھٹ پھٹ کر روتی ہوئی تھی کہ سیف اس کی اس قدر رونے پر یکدم بکھلا گیا۔ دانیہ میری جان، یہاں دیکھیں کیا ہو، کیوں رو رہی ہو یار؟ میرے دل بیٹھا جا رہا ہے، پلیز بتاؤ۔ سیف پریشان کے لہجے میں دانیہ کے چہرے اپنے ہاتھوں پہ آدم بڑھتے ہوئے گیا۔ سیف، ہم نے سب کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دیا ہے، کیسے سب کو فیس کریں گے ہم دونوں؟ دانیہ کم آن جادو ابھی بھی اس بات کو لے کر پریشان رہی ہے، میں کچھ دیر پہلے تمہیں کیا سمجھایا تھا
मैं सबको मना लूंगा, समझा भी लूंगा, लेकिन तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी बात नहीं सैफ, तुम पर भरोसा है तभी तो अपना आप तुम्हारे सपोर्ट कर दिया। तो मेरी जान थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो मेरे लिए। आज की रात कितनी स्पेशल है हमारे लिए। फाइनली मैं और तुम एक हो गए हैं, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी ख्वाहिश भी पूरी होगी। सैफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि दानिया ने रोने में मजीद रवानी आई थी। सैफ को खुद को कोसने बिना ना रह सका जो इसकी रोने की वजह बन गया था। दानी मैं जान का मन यार, मैं बस मजाक कर रहा था, बहुत फजूल बोलता हूँ ना मैं। आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा सैफ, मेरा सब कुछ अब तुम ही तो हो। दानिया समझ नहीं आया था। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा, और तुम रोना तो बंद करो यार, सारा मेकअप उतर जाना है तुम्हारा, फिर मेरी दुल्हन लगने के बजाय चुड़ैल लगोगी तुम। सैफ ने हंसते हुए इसे तंग किया था और दानिया तंग होते सोफे से कुशन उठाते इसकी भिजवा गई थी, जो अब बेडरूम के जाने भाग गया था। जैसे ही दानिया सैफ के पीछे रूम में पहुंची, सैफ इसको कहीं ना दिखाई दिया। इसने दानिया के रूम से निकलती सैफ ने एकदम इसको बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जिसके नतीजे में वो इसकी सीने से आ लगी थी। छोड़े मुझे सैफ, आज नहीं छोड़ सकता जान। क्यों नहीं छोड़ सकते? न जाने कब से तुम इस रात का इंतजार कर रहा था, कब से दिल में ख्वाहिश थी तुम्हें हासिल करने की, अपना बनाने की। आज पूरी होगी तो इसे कैसे जाने दूं? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं। सैफ हमार अरुल लहजे में गोया हो। इससे पहले कि सैफ दानिया पर झुकता, दानिया सैफ के सीने पर हाथ रखती, लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए ड्रेसिंग जाने पड़ी थी। इससे पहले कि वो अपने गले में पहना गुलबंद उतारती, सैफ ने आगे बढ़ते झटके से इसकी कमर में हाथ डालते अपना चेहरा इसके सीने में छिपाया था। सैफ क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहा हूँ महबूब को। सैफ ने दानी के कानों में सरगोशी करते इसके कान के लो को लबों से काटा। क्या दानिया के पूरे वजूद में सनसनी, जानती हूँ कितनी तसल्ली बख्श एहसास है ये कि तुम मेरी हो चुकी हो। मैंने तुम्हें पा लिया, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द हूँ। कितनी तसल्ली बख्श एहसास है ये। सैफ ने कहते हुए दानिया को रुख अपनी जाने मोड़ा था कि दानिया मारे हया के पलकें न उठा पाई। सैफ ने एक नजर दानिया की जाने देखा, जो लाल चेहरे लिए गर्दन झुकाए हुए थी। मुस्कुराते एकदम ही से गोद में उठाते बेड तक आया और एहतियात से बेड पर बैठाते इसने अपनी पॉकेट से एक महमिली डिब्बी निकाली, जिसमें खूबसूरत सी वाइट गोल्ड की रिंग थी। ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई, बहुत खूबसूरत है। दानिया ने मुस्कुराते कहा, पहना दूं? सैफ के पीछे दानिया ने हाथ आगे बढ़ाया तो सैफ ने रिंग पहनाती इसके हाथ चूम लिया, जिस पर दानिया सिर हुई थी। सैफ, ये फ्रॉक काफी हैवी है, मुझे चेंज करना है। दानिया सैफ की लो देती नजर से हाइफ होती गोया हुई कि एकदम ही सैफ बेड पर नीम दराज होता। दानिया को अपनी जानब खींचकर खुद पर गिरा गया था कि दानिया इस दफात पर घबरा गई थी। इससे पहले कि दानिया कुछ कहती, सैफ पूरी शिद्दत से इसके नारी लबों पर झुका था कि दानिया सैफ की शिद्दत पर बड़फड़ा करेगी। काफी देर तक अपनी मन मानी करने के बाद सैफ पीछे हटा तो दानिया को लाल चेहरे लिए गहरे सांस भरते देख मुस्कुराया था। इससे पहले कि एक बार फिर इस वजह दानिया तेज होती सांसों के दरमियान कहेगी, सैफ बस में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। दानिया कहने की देर थी कि सैफ एकदम इसकी कमर में हाथ डालते, इसकी फ्राक की जिप खोलते, कंधों से फ्राक घुसकाते हुए इसके कंधों पर अपने दांत निकालने लगा। मेरी दीवानगी को तुम्हें सहना ही होगा मेरी जान। कबरू आवाज में कहते सैफ एक मरतबा फिर इसे दानी के लबों को अपने लबों में लेते इसका सांस खुश कर गया। सैफ दानी को जीत के इसके बदन पर अपने वजूद की मेहर लगाकर मुस्कुराते हुए सुकून से आंखें मूंद गया था। अजलान उठ जाए ना, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? फलक अजलान पर झुके इसका कंधा हिलाती हुई हमवार सोने में मसरूफ था। अजलान, अब भी अगर ना उठे ना तो मैं नीचे चली जाऊंगी। मैं बता रही हूँ। फलक अजलान के टस से मिस नौरत एक इसे घूरती ही बोली थी कि इससे पहले कि फलक कमरे से जाती, अजलान जो सोने को टांग कर रहा था एकदम ही फलक का कलाई थामते हुए इस पे गिरा गया था। अजलान, क्या कर रही हैं आप? अपनी अनरोमांटिक बीवी के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ। अजलान ने शरारतन कहा कि फलक इसको हफ्की से देख कर रहेगी। अजलान, अब बस भी कर दें, छोड़े मुझे और उठें, फ्रेश हो जाएं, नीचे चलें। अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम पहले ही मुझे मासूम को भगा रही हो। अरजान ने बोझल आवाज में कहा था। फलक की शेरत पर लब रखते दांतों से काटा था कि फलक इसकी शिद्दत पर सिसकी थी। इससे पहले कि अरजान मजीद देखता, दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इन्हें अपनी जाना मुतवज्जो की। फलक झटके से अरजान से दूर होती उठी। यस कमन। अरजान के कहने पर मुलाजिमा अंदर दाखिल हुई। साहब जी, आपको और बीबी जी को बेगम साहब नीचे नाश्ते बुला रही हैं। ठीक है, आप चले, हम आते हैं। फलक के कहने पर मुलाजिमा सर को इसबाब में हिलाती बाहर की जाने पड़ी। सैफ आपके कब उठे? दानी की आंख खुली तो सैफ को बेड पर मौजूद न पाते हुए कमरे से निकल कर लाउंज की जाने बढ़ी, जहां सैफ शर्टलेस इसकी जाना बैठ के खड़ा था। दानिया के पकाने पर जगदम पलटा कि इसको पटा दानिया अपनी जगह पथरा सेगी कि माने सैफ के इतनी करीब माया को सैफ के इतने करीब देख वो सर को नफे में हिलाने लगी। आंखों में छाई नमी को बार बार पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करते
वो गम से चूर लहजे में बोला, क्यों सैफ, क्यों इतना बड़ा धक्का दिया मुझे? दानिया के दर्द भरे लहजे को महसूस करते सैफ गहरा मुस्कुराया। एकदम ही माया की कमर में हाथ डालते इसकी गाल पर अपने लब रख किया कि माया की तो खुशी की इंतहा ना थी, लेकिन यह मंजर देखते दानिया के दिल टुकड़ों में बटा था। दानिया बेबी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, ये सब तुम्हारा अपना बया हुआ है। याद है ना किस तरह तजलील की थी तुमने मेरे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने? क्या कहा था मैं नामर्द हूँ? हम तब कल रात में अच्छे से पता चल चुका होगा कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द। सैफ के लहजे में हकारत लिए गोया हुआ कि दानिया कहाँ साई साई करने लगे। इसकी इतनी नफरत भरी बातें सुनते इसे पल लगा था सारी सूरत हाल समझने में। क्या बगाया था मैंने तुम्हारा सैफ? किस गुनाह की सजा दी तुमने मुझे? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? क्यों मेरी मोहब्बत की मैं किसी को शरीक ठुकराया? दानिया आपकी बात गुस्से से चलाई कि सैफ ने आगे बढ़ता इसके बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त ने लिया और तेज पर लहजे में गोया हुआ, मेरी मर्दानगी को लड़कारा था तुमने दानिया शाहनवाज। मेरी मर्दानगी यानी सैफ मिर्जा की मर्दानगी को मैं कैसे चुप रहता? हाँ याद है ना वो थप्पड़ तुमने मुझे भरी मजमे में मारा था। आज भी वो इस थप्पड़ की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। ना मुझे कभी भूला है ना तुम्हें भूलने दूंगा। और हाँ, सबकी जरूरी बात बताना ही भूल गया, मुझे अगर मोहब्बत है तो सिर्फ अपनी माया से, तुमसे कुछ है तो वो सिर्फ बेपनाह नफरत है। सैफ के लहजे में काट को महसूस करते दानिया भीगी पलकों के बाढ़ गिरा गई। जबर करने के चक्कर में सफेद चेहरे में लालियां घुल चुकी थी। इससे पहले को मंजर साथी सैफ ने एकदम आगे बढ़कर इस रात को, क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? इस दिन की तरह आज थप्पड़ नहीं मारोगी? आज कुछ नहीं कहना चाहोगी? सैफ जफरी लब लहजे में गोया हो गई। एकदम ही दानिया ने अपनी लाल होती आंखें सैफ के अंदर गाड़ी। डरो इस वक्त से सैफ मिर्जा, जब तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे ही सामने आके खड़ा हो जाएगा। दानिया नीम आंखें लिए मजबूत लहजे में कहते हुए मंजर से हटी थी। अरजान लॉज में ब्रेक फिटा में ऑफिस से सीधा घर ही आया था और अब फलक को ढूंढने लगा जो इसी कमरे में दिखाई न दी। मुलाजिम ने पूछा, पता चला कि फलक किचन में मौजूद है। जब भी अरजान माथे पर बल डाले किचन की जाना पड़ा। जो ही किचन में पहुंचा सामने वर्द देख लाल आंखें एकदम खमार ज़्यादा हुई थी, क्योंकि फलक सफ़ेद रंग की लंबी कुर्ती के नीचे जीन्स की टाइट्स पहने गीले बालों को खोले हुई थी। बाल गीले होने के सबब इसकी सफ़ेद कमर वाज़ेह हो रही थी। फलक के पैर से गिरती गीले बालों को बूंदें एक दिलफरेब मंजर पेश कर रही थी। अरजान छोटे छोटे कदम उठाता फलक तक पहुंचा कि फलक को अरजान के आने का इल्म ही ना हो सका। यकदम ही अरजान ने फलक की पश को सीने से लगाते इसकी कान की लू को चूम गया। फलक इस अचानक आफात पर घबरा कर उठी थी। अजलान, आप हैं? ये क्या कर रहे हैं? हम अपने बेडरूम में नहीं किचन में हैं, कोई देख लेगा। फलक, मेरी कही हुई किसी बात का तुम पर असर क्यों नहीं होता? मैंने सख्ती से काम करने से मना किया था। डॉक्टर ने तुम्हारे सामने ही रेस्ट कहा तो किचन में काम कर रही हो। मुलाजिम सारे मर गए हैं जो तुम मामूली से काम कर रही हो। अरजलान गुस्से ले जमे हुए। अरजलान, आप प्लीज़ गुस्सा न हो। दरअसल मुझे पता था कि आप आज लंच घर में ही करेंगी, इसलिए मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बेक कर रही थी। बस तकरीबन काम खत्म ही हो चुके, अब चलें, रूम में पिज़्ज़ा लेकर आ रही हूँ। फलक ने तेजी से कहते हुए अरजलान के बाजू को अपनी कमर से हटाया था और सिंक के करीब जाते हुए हाथ धोने पलटी थी कि अरजलान जो इसके कुछ दूर खड़ा था एकदम ही किचन के दरवाजे के जाने पड़ा था और दरवाज़ा लॉक करते फलक की जानब एक ही चश्मे बच्चों इसे कमर से उठाकर शेफ पर बैठा गया कि फलक इस अचानक अफात पे बुखला गई। इससे पहले फलक कुछ कहती अरजलान पूरी शिद्दत से फलक के लबों पर झुका था कि फलक को सांस लेना दुश्वार पे इशारे तो मजामत करने लगी, जबकि अरजलान को फलक का यूं मजामत करना एक आंख नहीं भाया था। जब भी वो फलक के दोनों टांगों को अपनी गिर्द लपेटता, इसकी कलाइयों को अपने एक हाथ में पकड़ता, इसकी शेरत पर लब रख किया कि फलक अरजलान का ये जुनूनी अंदाज देख लब कुचल करेगी। इससे पहले कि अरजलान एक और बार फलक के लबों पर दस्तरस में लेता, अरजलान का सिर रंग हुआ। जब भी न चाहते हुए फलक ने माथे पर अपने लब रखते हुए पीछे हटा गया हुआ। पिज़्ज़ा लेकर रूम में आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ माई हार्ट वाइफ। अरजलान के एक दफे फलक के लबों को हल्का सा चुमा और फोन पर आती मुसलसल कार को पिक करते किचन से निकला कि फलक वहीं शेल्फ पर बैठी सिर्फ चेहरे लिए तेज सांसें लेती मारे हया कि अपना चेहरा अपने ही हाथों में छिपा गई थी। दानिया बैग में अपने कपड़े डाल रही थी, जब नंबर निमरा का काफी सब बढ़ते हुए गोया हुई। दानिया, एक बार फिर सोच लें, आपका और आपकी मम्मी का कितना बड़ा ख्वाब था कि आप डॉक्टर बने। अभी तो काफी टाइम पड़ा है अपनी मंजिल तक पहुंचने में, आप अभी से हार मान रही, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रही हैं। दानी, प्लीज ऐसा मत करें, खुद को एक और मौका दें। मैं हूँ आपके साथ, नहीं मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि खुद एक और मौका दूँ। और रही बात डॉक्टर बनने की, तो मैं पाकिस्तान जाकर भी बन सकती हूँ नानी, लेकिन आपका ख्वाब था फॉरेन कंट्री में स्टडी करना, फिर वे सब कैसे बदल गया? निमरा ने छाछी निगाह से दानी के जाना था कि ख्वाब नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो सिर्फ तकलीफ का सबब बनते हैं। दानी ने रूंढले हो लहजे में कहा कि निमरा दानी के गिलगोज लहजे में महसूस करते लब बीच के रहेगी।
دانیہ کیا واقعی ہی موو آن کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ اس انسان کو بھول جائیں گی؟ نیمی، اس کی شخص نے میری عزت کی دھچکیاں اڑا دی ہیں، مجھے دھوکہ دیا، میری محبت کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کو بھول پاؤں گی یا نہیں؟ میں اسے بھول چکی ہوں۔ اگر ذہن میں کچھ ریب باقی ہے تو صرف اور صرف ایک تلخ یادیں، اور بھی جلد ہی مٹ جائیں گی۔ دانیہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی، دانیہ میں نے آپ کو کتنا سمجھایا تھا کہ اس دوہرے شخص پر بھروسہ نہ کریں، لیکن آپ کو جیسے اس کی محبت میں اس سے پہلے کا نمرہ جملہ مکمل کر دانیہ گویا ہوئی، اس کی محبت میں جیسی اندھی ہو چکی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، تمہاری بات مان لیتی ہوں تو آج حالی ہاتھ نہ ہوتی۔ دانیہ نے بہتے آنسوں کے درمیان کہا کہ نمرہ نے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگایا۔ نمرہ کے گلے لگنے کی دیر تھی کہ دانیہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بس دانیہ، چپ کر جائیں، ایسے تو آپ کی اپنی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس بے وفا کی خاطر اپنی قیمتی آنسوں کو یوں مت بے مول کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نمرہ نے دانیہ کو تسلی دیتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دانیہ میں آپ کو بہت مس کروں گی یار۔ نمرہ افسردگی سے گویا ہوئی، نمرہ میرا نمبر ہے نا تمہارے پاس، میں کانٹیکٹ میں رہوں گی تمہارے ساتھ، اور جب پاکستان آئی تو مجھ سے ملنے میرے گھر ضرور آنا۔ دانیہ مسکراتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، ایئرپورٹ کے لیے کب نکلنا ہے؟ 1 گھنٹے تک۔ دانیہ نے نمرہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، چلیں پھر ٹھیک ہے، بریانی بس دم پر ہے، آ جائیں دونوں ساتھ مل کر کھاتے ہیں، اور پھر آپ کے ہاتھ کی کافی پئیں گی۔ نمرہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دانیہ گہرا سانس پڑتے بیڈ سے اٹھتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ دانیہ بیٹا، تم یہاں اچانک؟ باسم خان اور دیبا دانیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے، مامو جان، میرا وہاں آپ سب کے بنا دل نہیں لگ رہا تھا، اور پیپرز بھی ہو چکے تھے، اس لیے واپس آ گئی۔ اچھا چلو بیٹا، کوئی بات نہیں، کم سے کم چھٹیاں ختم ہونے تک تو یہیں رہو گی نا میرے پاس؟ دیبا بیگم پیار پر لہجے میں گوئی، نہیں موم، اب میں واپس نہیں جاؤں گی، اب میں یہیں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کروں گی۔ لیکن بیٹا ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا خواب تو فارن کنٹری میں پڑھنے کا تھا، ویسے کیا ہوا؟ باسم خان نے حیرانی سے گویا ہوئے، مامو جان آپ جانتے ہیں نا، موم اکثر بیمار رہتی ہیں، بس اس لیے ان کی صحت کو لے کر پریشان ہوں، اور وہاں اکیلے رہنے کی عادت بھی نہیں ہے مجھے، اور پڑھائی کا کیا ہے، وہ تو یہاں رہ کے بھی ہو سکتی ہے نا؟ دانیہ نے باسم خان کے جواب دیکھتے ہوئے کہا، جو اس سے جائنتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہارے بہتر لگے، تمہارا رزلٹ آ جائے گا تو مجھے بتا دینا، اپنی بیٹی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ باسم خان مسکرا کر دانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے۔ دیکھتے دیکھتے 2 ماہ بیت گئے، دانیہ نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا۔ سیف کے بارے میں بتانے کی ہمت اس میں اب تک نہ آئی تھی، بتاتی بھی کیسے، کچھ بتانے کے لائق تھا ہی نہیں۔ جنت اور نعمان کی شادی 1 ماہ بعد طے پائی کی تھی، کافی تیاری ہو چکی تھی، پریگننٹ ہونے کی وجہ سے فلک کی طبیعت کچھ ناساز لینے لگی تھی۔ جب بھی وہ جو باقی کی تیاریاں تھیں وہ دانیہ اور ذکیہ بیگم مل کر رہی تھی، دانیہ بھی ان کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی تھی۔ آج فلک کی برتھ ڈے تھی تو ارزان نے بنا فلک کو بتائے اس کے لیے گھر میں ہی پارٹی ارینج کی تھی، جس میں چند فیملی کے لوگ کو، فرینڈز اور آفس کولیگ اور ارزان کے انوائٹ کیے گئے تھے۔ فلک کو آج ارزان نے شام میں کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ برتھ ڈے پارٹی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، بس اب فلک کی تیاری ہونی باقی تھی۔ ارزان تو پہلے ہی ایک نظر اپنے سے ہی ریڈی تھا، مہمان بھی آنے والے تھے۔ ارزان کلائی پر بندی گاڑی کی جانب دیکھتا، پھر قدم اوپر کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ ارزان، لیکن بتائیں تو صحیح، تیار ہونا کیوں ہے؟ فلک صوفے پر بیٹھی ارزان کی جانب دیکھ رہا، جو بلیک اینڈ وائٹ 3 پیس سوٹ میں پہنے انتہائی دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا نا سرپرائز ہے، اب اسے بتا دی تو سرپرائز تو کیسا، اس سے جلدی سے اٹھو، تیار ہو جاؤ، میں بس کچھ دیر میں آ رہا ہوں چیک کرنے کے لیے کہ تم تیار ہوئی کہ نہیں۔ ارزان نے اجرت میں بڑے لہجے میں کہتے کمرے سے باہر گرا لی، جبکہ فلک گہرا سانس بھرتے اٹھی تھی اور بیڈ پر بڑا ڈریس اٹھایا، جو دکھنے میں بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی تھی جو ارزان ہی نے اس کو لے کر دی تھی۔ 15 منٹ بعد فلک گیلے بالوں میں سمیت ساڑی پہنے واش روم سے باہر آئی۔ گیلے بالوں کو ڈرائی سے خشک کر کے اس نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے آنکھوں میں کاجل ڈالا، لائبی پلکوں کو مسکارے سے بوجھل کرتے اس نے آنکھوں میں آئی لائنز لگائی، لبوں کو لال رنگ کے رنگتے ہوئے ڈریسنگ پر ڈائمنڈ سیٹ اٹھایا اور دکھنے میں انتہائی نفیس اور خوبصورت تھا۔ پہنتے اس نے خود پر پرفیوم کو اسپرے کرتے ایک نظر خود کو جائزہ لیا، مکمل تیار تھی، بس جوتی پہننی ہی باقی تھی۔ بیڈ کے پاس پڑی بلیک ہائی ہیلز ایک نظر ڈالتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ تاکہ انہیں پہن سکے۔ فلک کو اس سے پہلے کہ وہ اپنے پہنتی کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ تیار دیکھ کر ارزان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بیٹھ کے آگے بڑھا اور ارزان گھٹنے کے بل بیٹھا تھا اور فلک کے پاؤں اٹھا کر اپنے فلک کے پاؤں کو پوری شدت سے چوما تھا کہ فلک لال چہرہ لیے نگاہیں چکا گئی۔ ارزان، یار کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں، میں خود پہن لوں گی۔ فلک ارزان کو خود کو جوتے پہناتا دیکھ کر بولی، جی جناب، میں جانتا ہوں آپ خود کر سکتی ہیں، لیکن کیا ہے نا، آج یہ کام آپ کے شوہر نامراد خود سر انجام دینا چاہتے ہیں تو ملکہ عالیہ اجازت دیجیے۔ ارزان شوخ لہجے میں فلک کو مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلا گئی۔
اذلاں نے اسے جوتیاں پہنائے تھے، اسے اپنے ساتھ کھڑے کیا اور فلک اپنی برتھ ڈے بالکل بھول چکی تھی جبھی وہ سرپرائز کا اندازہ نہ لگا پائی تھی۔ چلو اب چلیں، اذلاں نے فلک کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور اب اسے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا۔ فلک اذلاں کے ہمراہ لائن میں آتے بڑے لفظوں میں ہیپی برتھ ڈے اذلاں کی جان لکھا دیکھ سمجھ چکی تھی کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے، جس کو بالکل بھول چکی تھی۔ اذلاں آپ کو یاد تھا؟ فلک نے آنکھوں میں نیمی لیے پوچھا۔ جی بالکل اذلاں کی جان، اذلاں اپنی جان کا برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ اذلاں نے فلک کا ماتھا چومتے کہا کہ اس کے دل پر چھڑیاں سی شنایا کے دل پر چھڑیاں سی چلی تھی اور آنکھیں غصے کی زیادتی سے سبب لال ہوئی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد کھانا کھول دیا گیا تھا۔ فلک ہائی ہیلز پر تھک چکی تھی، اس لیے جنت کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب چل دی تاکہ وہ وہاں کوئی آرام دہ جوتی نکال کے پہن سکے۔ فلک اور جنت اندر جانے کے بعد شنایا سب کی نظروں سے بچتے بچاتے اندر جانے والی۔ جی میم آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ میڈم شنایا کو کچن کی دیکھ کر حیران ہوتی بولی۔ ہاں نہیں، آئی تھنک باہر لان میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ شنایا کہنے پر میڈ باہر کی جانب بڑھ گئی جبکہ شنایا نے فوراً سے آگے بڑھتے آئل کی بوتل اٹھائی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے پیچھے دکھنے کے بعد جب اس کی تسلی ہوئی کوئی نہیں ہے تو جبھی انتہائی چلاکی سے اس نے سیڑھیوں پر آئل گرا دیا اور فوراً سے کچن سے جانب بڑھتے اس نے واپس قدم باہر کی جانب بڑھا۔ جنت میں پہن چکی ہوں، چلو نیچے۔ فلک جنت کی جانب دیکھتی ہوئی بولی جو کسی غیر مرئی نکتے کو گھڑ رہی تھی۔ ہاں ابھی چلیں۔ اس سے پہلے کہ جنت اٹھتی اس کے موبائل پر نمان کی کال آنے لگی۔ آپ چلیں، میں بس آ رہی ہوں۔ وہ دراصل نمان کی کال آ رہی ہے، کوئی بات نہیں گڑیا، تم آرام سے بات کر لو، پھر آ جانا، میں جا رہی ہوں۔ فلک مسکرا کر جنت کی گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی کہ جنت نے مسکراتے ہوئے کال پک کی اور فلک کمرے سے باہر نکلی، باہر کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی فلک دوسری سیڑھی پر پہنچی تھی اس کا پاؤں سلپ ہوا تھا اور فلک کی دلخراش چیخ گونجی تھی کہ جنت فوراً سے باہر بھاگی، لیکن تب تک وہ درجہ فلک اندھے منہ سیڑھیوں سے نیچے گری پڑی تھی۔ اس کے سر سے نکلتا خون چاروں سو پھیلا تھا۔ اذلاں فلک کی شیل سے بھاگتے ہوئے اندر آیا لیکن فلک کو یوں بے سود پڑا دیکھ اس کا دل دہک گیا۔ دل میں خوف نے جنم لے کر ذکیہ اور نائلہ بیگم روتی چیختی ہوئی فلک کی جانب بڑھی۔ یکدم اذلاں ہوش میں آتا دوڑتا ہوا فلک کے قریب گیا۔ فلک میری جان اٹھو، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم آنکھوں کیوں نہیں کھول رہی؟ موم خالہ یہ اس سے فلک سے بولا ایسا کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ؟ اذلاں کے ساتھ کیوں کر رہی ہے؟ اس سے بولے نے آنکھیں کھولے۔ اذلاں کو نفی میں ہلاتے لٹھے کی مان سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بولا، بیٹا اس کو ہسپتال لے کے چلو، جلدی کرو۔ نائلہ بیگم کہنے پر اذلاں نے آنسوؤں کو رگڑتا فلک اپنی باہوں میں اٹھائے باہر جانا پڑا جبکہ شنایا کے لب اپنے آپ ہی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ جنت آپی کیوں رو رو کے خود کو لگان کر رہی ہیں؟ بیٹھ جائیں، پانی پئیں۔ دانیہ جنت کو مسلسل روتا دیکھ افسوس گن لہجے میں بولی، دانیہ اگر فلک آپی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی اذلاں کو؟ فلک آپ کو میرے بھروسے انہوں نے بھیجا تھا نا؟ نہیں، اگر خدا نہ خواستہ فلک آپی کو کچھ ہو گیا تو اذلاں تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ آپ ایسا کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے آپی، فلک آپی آپ کی وجہ سے نہیں گری ہیں۔ دانیہ تمہیں سمجھ کے نہیں آ رہا، میری وجہ سے گری ہیں وہ۔ اگر نمان کی کال نہ سنتی، ان کے ساتھ نیچے جاتے تو شاید وہ بچ جاتی۔ میں نے فلک آپی کے ان کی خوشیاں چھین لی۔ دانیہ یہ کیا ہو گیا؟ دانیہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ دانیہ دانتیں روتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھی میں جگڑتی ہوئی بولی، آپی کیا ہو گیا؟ آپ کو پاگل ہو گئی ہیں؟ یہ سب پہلے سے لکھا ہوا تھا، ایسا ہی ہونا تھا، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، سمجھی؟ آپ خود کو مت اذیت دیں۔ دانیہ نیم لہجے میں کہتی ہوئی جنت کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، اذلاں کے وہاں پاؤں چل کر خوشحال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک آپریشن تھیٹر سے کوئی نرس یا ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا۔ اذلاں کا روم اس وقت اپنی فلک اپنے بچے کے لیے دعا گو تھا لیکن شاید قسمت کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹس آف ہوئی، ڈاکٹر باہر آئے اور اذلاں سمیت ذکیہ نائلہ بیگم دونوں اس کی جانب بڑھی۔ ڈاکٹر میری وائف اور بیبی کیسے ہیں؟ اذلاں نے آنکھوں میں نیمی لاتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری مسٹر اذلاں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن آپ کی وائف اور بیبی کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر نے افسوس گن لہجے میں کہا کہ اذلاں کی ڈاکٹر بات سنتے ہی اپنی جگہ پر تراس گیا، آنکھوں سے سیل روانہ ہوا، جھوٹ ہے یہ سب، ایسا نہیں ہو سکتا، میری فلک کہیں نہیں جا سکتی، چھوڑیں مجھے۔ اذلاں ہوش میں آتے چیختے ہوئے ڈاکٹر کا گریبان پکڑا جس کی بنا پر ڈاکٹر گھبرا گیا۔ جھوٹے ہو تم سب لوگ، میری فلک مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتی، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ اذلاں پاگل اور تھا، آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے، چھوڑ دو بیٹا، سب اللہ کی رضا کے آگے بے بس ہیں، فلک اتنے ہی زندگی لکھوا کے آئی تھی، میرا بچہ خود کو سنبھال لو۔ نائلہ بیگم اذلاں کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیم لہجے میں بولی کہ اذلاں نے کرب سے آنکھیں بند کرتے ڈاکٹر کے گھبران سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ میں کیسے جیوں گا فلک کے بنا؟ میں نہیں رہ سکتا ماں، میں مر جاؤں گا فلک کے بغیر، پلیز آپ دعا کریں نا اس سے کہ وہ اسے مجھے واپس لوٹا دے۔ موم میں کیسے جیوں گا؟ موم میں کیسے؟
अजान टूट बिखरते लहजे में गोया हुआ था। ज़किया बेगम आगे बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखते हुए गोया हुई, अजलान मेरी बेटी को घर ले चलो, हमें इसकी आखिरी आरामगाह तक भी पहुंचाना है। ज़किया बेगम का अजलान तड़प कर रह गया, जिसम से जैसे जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। बेटा ज़किया ठीक कह रही है, तुम्हें यह फर्ज पूरा करना होगा। नाइला बेगम कहने पर अजलान ने गहरी सांस भरते और आंसू साफ करते कदम आगे की जाने बढ़ाए थे। क्या क्या कह रही हैं भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? दीबा ने बहते आंसू के सलमान जन्नत और दानिया दोनों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। पप्पू क्या हुआ? आपी को वो ठीक तो है ना? जन्नत ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा था कि दीबा बहती आंसू के दरमियान बोली, हमारी बेटा हमारी फलक हमें छोड़कर चलेगी। दीबा के कहने में जन्नत ने जैसे अपने ख्वास खो दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फलक आपी कैसे जा सकती छोड़कर? देखो दानिया, देखो ना, मैं कह रही थी ना इसकी कसूरवार में हूँ। फलक आपी के साथ ये सब मेरी वजह से हुआ। जन्नत ने जमीन पर बैठते हुए मुसलसल बहते आंसू के दरमियान कहा, आप प्लीज खुद को संभालें, क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं? फलक आपी की किस्मत में ये लिखा तो इतनी ही जिंदगी लेकर आई थी, प्लीज खुद को ब्लेम मत दें आपी। दानिया ने बहते आंसू के साथ दरमियान में कहा, जन्नत को संभालते हुए कहा, जो कहीं से अपने हवास में ही नहीं दिखाई दे रही थी। जन्नत आप आपकी हरी दफा फलक आपी को देख लेने, जनाजे का टाइम हो रहा है, इन्हें इनके आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने हैं। दानी कहने पर जन्नत जैसे तैसे करके उठी और आगे बढ़ते लोगों के हजूम से निकलते वहां पहुंची जहां इसकी फलक कापी थी। इससे पहले कि वो इसका चेहरा देखती, अजला जो वहीं था इसके आगे बढ़ते इसके जटिल से दूर करते देखे हल्का चीखते रहा, खबरदार खबरदार, दूर हो, इसके चेहरे देखना तो दूर की बात, मैं तुम्हें इसके करीब भी जाने नहीं दूंगा। कातिल हो तो मेरी फलक की, मैं जितना चाहता, तुमने क्यों किया ये सब? ताकि अपने गलीज मकसद में कामयाब हो सके। ना जानते हो आप लोग इसने क्या किया है? इस घटिया लड़की ने मेरी फलक की जगह लेने की कोशिश की है, इसी ने फलक को सीढ़ी से धक्का दिया है। कातिल है ये मेरी बीवी की। अजलान लाल होती आंखों के साथ गया, लोगों की आपस में छिम गुचूर हो चुकी थी। दानी ने आगे बढ़ते जन्नत को थामना चाहे, इससे पहले कि वो उसे थामती यकदम ही जन्नत का वजूद जमीन बोस हुआ था कि दानी की बेसाख्ता चीख गूंज उठी थी। फलक की मौत के एक माह गुजर सभी की जिंदगी अपनी डगर पर लौट आई थी, सिवाय अरजलान की। इसकी दुनिया तो फलक ही थी और फलक के जाने की दुनिया इसकी उजड़ गई थी। फलक की मौत के बाद इसने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था, सिर्फ अपने कमरे का होकर ही गया था। हर वक्त फलक की तस्वीर को सीने से लेकर अजलान फलक की याद में खोया रहता था। दरवाजे पर दरअसल अजलान ने अपने जानो, यस आ जाए। अजलान कहने पर नाइला बेगम हाथ में ट्रे खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। मॉम आप आए ना? नाइला बेगम अंदर आता देख अजलान उठ कर बेटा कब तक खुद को अजियत में मतला रखोगे? नाइला बेगम ने नींद आंखों से कहा, अजियत कैसी? ये तो मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जिसको मैंने पाके भी खो दिया। बेटा मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। लेकिन मैं मर चुका हूँ मॉम, फलक के जाने के बाद मैं मर चुका हूँ। वजूद में रूह तो है, तो वजूद है, लेकिन मुर्दा दिल मुर्दा हो चुका है। फलक के जाने के बाद इस दिल ने धड़कना छोड़ दिए है। अजलान लाल आंखें लिए खोए हुए लहजे में बोला कि नाइला तड़प कर रह गई थी। बेटा फलक की इतनी ही जिंदगी थी, हम सब इसकी रजा के आगे बेबस हैं, लाचार हैं। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अपना नहीं तो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल कर लो। नाइला बेगम ने बेहते आंसू के दरमियान कहा। अजलान गहरी सांस भरते कोया, अच्छा मॉम प्लीज आप रोएं तो मत, इस तरह तो आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। अजलान ने नाइला बेगम के आंसू साफ करते हुए कहा, अजलान मेरी जान, तुम्हें 2 दिन से कुछ नहीं खाया पिया नहीं है, प्लीज मेरी जान कुछ खा लो, बल्कि अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने बेटे को। नाइला बेगम अजलान की कालों पर हाथ रखती प्यार से गोया हुई, माँ मुझे भूख नहीं है। अजलान ने मना करना चाहा। अजलान अब अगर तुमने कोई बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी, चुपचाप खा लो। नाइला बेगम ने संजीदा लहजे में कहा, अच्छा ठीक है खिलाएं। अजलान के कहने पर नाइला बेगम ने नवाला इसके मुंह की जाने बढ़ाया। अजलान दरअसल में बताना भूल गई थी, 3 दिन बाद जन्नत का निकाह है, सादगी से ही निकाह करके रुखसती कर देंगे, हम लोग स्पेशली इनवाइट हैं। जन्नत का नाम सुनकर अजलान की आंखें हर दर्जा लाल हुई थी, जबकि जिससे में मौजूद खून खोलने लगा। बस मम्मी ने खा लिया, मैं और कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अजलान ने स्पाट लहजे में कहा कि नाइला बेगम ने गैर सांस लेते कदम कमरे से बाहर की जाने बढ़ा लिए थे। अजलान शावर के लेके निकला तो रात के 9 बज रहे थे। इस टाइम डिनर का टाइम होता था। कुछ सोचते हुए इसने कदम नीचे की जाने बढ़ाए। अरे अजलान बेटा आओ ना, हम लोग को कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं अभी तुम्हारी मोम से पूछने ही वाला था कि हमारा बरखुदार कहाँ है। एमन हाथ ने मुस्कुरा कर कहा कि अजलान टेबल पर अपनी प्लेट चम्मच लाते किसी गहरी सोच में गर्द कर, क्या हुआ भाई, आपको ऐसी सोचों में डूबे हुए हैं? ठीक है ना आप? इस्लान जो गए फलक के मरने के 2 हफ्ते बाद घर आया था गया हुआ। डेड मॉम में आप दोनों से कोई जरूरी बात करनी है। अरजलान ने इन दोनों की जानब देखते हुए कहा, हाँ बेटा, हाँ मेरा बेटा बोलो, हम सुन रहे हैं। नाइला बेगम प्यार से कोई, दरअसल मैं जन्नत से निकाह करना चाहता हूँ। अरजलान की कही बात
खान खानदान के मलकों गोया बम बनकर गिरी थी। सभी अरजान की बात सुनकर झटके के जद में थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी को मरे हुए 6 जमा 8 दिन नहीं हुआ और तुम्हें अभी से दूसरी शादी की फिक्र पड़ेगी। अहमद खान जलाल की में गवाह, भाई आप होश में तो हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि जन्नत का 3 दिन बाद निकाह है। बिल्कुल मैं होश में हूँ। और निकाह का मुझे का क्या मुझसे हुआ या किसी से भी? वैसे भी आप अक्सर ही कहती थी ना कि जिंदगी बहुत लंबी है, गहरे नहीं कटी जाते। तो अब क्या हुआ आप सबको? भाई मैंने किसी और से भी तो शादी करनी है, तो फिर जन्नत से क्यों नहीं? अरजलान सपाट लहजे में गोया हुआ। अरजान बेटा, जन्नत की मंगनी हो चुकी है, 3 दिन बाद निकाह है, ये नामुमकिन है। नायला बेगम फिक्रमंदी से बोली। मंगनी तोड़ी भी जा सकती है और कौन सा बदनाम होगी है? मैं करूँगा ना निकाह। और इससे क्या चाहिए इन लोगों? इन्हें आप लोग चाचू से बात करें या फिर मैं खुद करूँ? अरजान ने सर दो सपाट लहजे में कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा ये बेटा खानदान भर में मेरी नाक कटवा के ही दम लेगा। अहमद खान गुस्से से कहते हुए ऊपर की जाने बढ़ गए, जबकि नायला बेगम भी इनके पीछे हो रही। भाई ये सब क्या है? क्या करना चाह रहे हैं आप? असलान अरजलान को देखकर बोला, जो अहमद से खाने मसरूफ है, ये मेरी जिंदगी जिस तरह से चाहूँ गुजारूँ। अपने किए हुए किसी भी अमल का मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। अरजलान संजीदा लहजे में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और कदम अपने कमरे की जाने बढ़ा गया। भाई साहब, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे होता कि मेरी बेटी का कल निकाह है और आप कह रहे हैं कि अरजलान और जन्नत का निकाह माजरत के साथ? भाई साहब, लेकिन मुझे आपसे किसी ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। पासिम खान सर सपाट लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। हो गए खुश। मेरे भाई को मुझसे बदगुमान करवा के मुझे मालूम था कि इनका यही जवाब होगा। मुझे समझ नहीं आ रही तुमने क्यों बेफजूल सी जिद लगाई है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। बेहतर अगर तुम फजूल किस्म के ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। अहमद खान सपाट लहजे में कहते हुए कदम अपने कमरे की जाने बढ़ा गए थे। जन्नत शीशे के सामने बैठी खुद के सजे सुनहरे रूप को देखते हुए हैरान थी। रूप इस पर टूट के आया था। इसे नवाज से कोई मोहब्बत ना थी, ना ही नवाज ने इसमें कोई खास दिलचस्पी ली थी। फिर ये रूप का आना इसकी समझ से बाहर था। जन्नत प्योर रेड कलर की मैक्सी जेब तन किए, चेहरे के खूबसूरत नकोश को मेकअप की मदद से मजीद खूबसूरत बनाए, खानदानी जेवरात में मबलूस गहरी सोच में गढ़ थी। अभी वो इसी इंसान में बैठी थी कि इसे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि जन्नत कमरे से बाहर निकलती, दानिया ख्वास बाहता न दाखिल हुई। क्या हुआ दानिया, बाहर शोर कैसा है? जन्नत नासमझी से गोई हुई। दानिया के लंबे लंबे सांस लेने पर जन्नत उलझन का शिकार हुई। दानिया क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारा सांस इतना फूला हुआ क्यों है? जन्नत को अब तशवीश ने आन करा। अभी वो दरअसल नमान पहले से शादीशुदा है, इसकी एक बेटी भी है। निकाह होने से इन 10 मिनट पहले इसकी बीवी इसकी बच्ची को लेकर आई थी। नमान उसकी फैमिली फ्रॉड है, इन्होंने धोखा दिया हमें। मामू जान ने मंगनी तोड़ दी है, उन लोगों का बेइज्जत कर घर से निकाला है। दानी की बात सुनते जन्नत बेड पर दास सी, कुछ आंसू इसकी पलकों के पार से तोड़ गए थे। कैसी किस्मत पाई थी इसने? क्या कसूर था इसका जो इसके साथ ये सब हुआ? जन्नत आप ही भी रिलैक्स, आप बिल्कुल परेशान मत हो। वफा और बेगदाज भर लोगों के लिए यूं ही आंसू नहीं बहाते। अल्लाह पाक ने यकीनन आपकी किस्मत में कोई ऐसा मुसफ़िर लिखा होगा जो आपके सारे दुखों का मदावा करेगा। दानिया जन्नत को गले लगाती इसको तसल्लियां देती हुई। अब क्या होगा बासम? कौन शादी करेगा मेरी जन्नत से? वो तो बसने से पहले ही हो जाएगी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? सकिया बेगम रोते हुए फुल वक्त इनके खानदान की इज्जत दाव पर लगी थी। तब सभी जानने वाले इनके यहाँ मौजूद थे। वहाँ मौजूद लोगों की आपस में छेड़ मगज शुरू हो गई। सकिया, इसी वक्त चुप कर जाओ प्लीज़, मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा। मैं एक बेटी को खो चुका हूँ, दूसरी बेटी की ज़िंदगी भी दाव पर लगी है। या अल्लाह, मुझे रास्ता देखा, मैं क्या करूँ? कैसे खुद की और अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत करूँ? मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। वासिद खान आंखों में लिमिले दिल ही दिल में गोया थे। कुछ पलों के बाद इन्होंने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया कि यकदम नजर अजलान पर पड़ी, जो फोन को कान से लगाई कुछ बोलने में मसरूफ था। इस वक्त लॉन्च में बासिम खान, अहमद खान, सकिया बेगम, नायला बेगम, अजलान ही मौजूद थे। अजलान, बासिम खान ने बुलाने पर अजलान ने निगाह इनकी जानिब मरकूज की। जी चाचू। अजलान बेटा, अब मेरी इज्जत तुम्हारी ही हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे रसवा करो, चाहो तो इसमें रसवाई से बचाओ। चाचू आप हुक्म करें, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। अजलान इनकी जानिब देखते हुए गोया हुआ। अजलान, मेरी जन्नत को बुला लो, इसको अपना नाम दे दो, इसको ज़माने की सर्द गर्म से बचा लो। एक बूढ़े बाप की इल्तिजा है तुम्हारे सामने। बासिम खान ने हाथ जोड़ने चाहे थे, लेकिन अजलान फौरन के हाथ थाम गया और फिर जी कड़ाक करता हुआ गया। जी मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप बुलाएं काजी साहब को। अजलान इकरार सुनकर ज़किया और बासिम खान नीम आंखों समेत मुस्कुराए थे। अजलान ने इन्हें और इनकी बेटी को रसवा होने से बचाया था। मम्मी, ये सब बचाने कैसे? ये दिन नहीं, ऐसे नहीं हो सकी, निकाह नहीं कर सकती प्लीज़। जन्नत बरसती आंखों समेत गोया हुई। जब भी कमरे में बासिम खान दाखिल हुए। जन्नत बेटा, अपने बात का मान रख लो, मुझे रसवा होने से बचा लो। अजलान से निकाह के लिए हाँ कर दो,
तुम्हारा मुझ पर एहसान समझूंगा। नहीं डैडी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बेटी हूँ आपकी इज्जत से बढ़कर मुझे कुछ अजीज नहीं। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। जन्नत ने बहती हुई आंखों समेत खुद को इंतहाई मजबूत करते हुए कहा था कि वासिम खान ने इसका माथा चूमते इसे ढेरों ढेर दुआएं देते हुए दे डाली थी। जन्नत वासिम खान वल्द वासिम खान आपका निकाह अजलान खान वल्द अहमद खान के साथ बावजूद 70 लाख रुपए हक में कहते पाया है। क्या कबूल है? काजी के सोचों ने जन्नत को हर तरह की सौगात किया था। कबूल है, कामते लहजे में कहते उसने सितमगर के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर थमा दी थी। जन्नत बेटे, मैं जानती हूँ ये सब बहुत अचानक हुआ है, लेकिन अब यही तुम्हारा घर है। अजलान तुम्हारा शोर है। मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ। यही लग रहा है कि तुम्हारे आने से मेरे घर की खुशियाँ लौट आई हैं। नायरा बेगम जन्नत करीब बैठते गोया है। ताई अम्मी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? जन्नत आंखों में नीमिली गोया हुई। मेरी जान, मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे घर की खुशियाँ वापस लौट आई हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे बिखरे हुए बेटे को समेटो, इसके दुख सुख की साथी बन सको, इसकी जिंदगी की जानब वापस लेके आओ। बोलो करोगी ना? नाइला बेगम दुखी लहजे में बोली, जबकि जन्नत सर को इस पाप में हिला गई। जन्नत असलान के कमरे में मौजूद जहाजी साइड पर बैठी बरजमा हाथों की गुलियां मरोड़ती सोचो के मुख्तलिफ ताने बाने बुनने में मसरूफ थी। जब ये अजलान कमरे में दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होकर एक तेज बड़ी निगाह जन्नत के जानब डालता वो इसकी जानब बढ़ा कि जन्नत इसको अपनी जानब देख बढ़ा के शिकारत होती पहलू बदल के रहेगी। इससे पहले कि जन्नत बेड से उठती, अरजान एक ही चेस्ट में इस तक पहुंचा। इसकी कमर को जकड़ गया कि जन्नत इस आफात पर बुखला करेगी। जानती हो कितना इंतजार था मुझे इस पल का कि कब तुम यूं मेरे दस्तरस में हो और खुलकर तुमसे अपनी नफरत का इजहार कर सकूं। जानती हो जन्नत वासिम खान के अरजान शाह को तुमसे जुनून की हद तक नफरत है, जिसमें जन्नत वासिम खान की रूह के बच्चे उड़ा दिए जाएंगे, जिसमें जन्नत वासिम खान का वजूद किरची होगा। बस कर दें अजलान, इतनी ही नफरत थी तो ये निकाह क्यों किया? क्यों जबरदस्ती मुझे खुद पर मुसरत किया ताकि तुमसे अपनी फलक की मौत का बदला ले सकूं? अजलान ने असदहा की तरह फंकारते हुए लहजे में कहा कि जन्नत यकटक इसके चेहरे को देखने लगी, लेकिन कुछ तफक इस बात बोली, तलाक चाहिए आपसे, मुझे नहीं रहना आपके साथ इस बेबुनियाद और ज़बरदस्ती के रिश्ते में। छोड़ूंगा तो कभी भी नहीं तुम्हें, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक खुद तुम्हें अपने हाथों से कब्र में ना उतार दूं। अजलान लाल होते चेहरे के साथ गोया हुआ जन्नत की शफाफ गर्दन पे अपने दांत गाड़ते इसकी सिसकियां बुलंद कर गया था। छोड़े मजेदार, ये क्या तरीके है? जब मुझसे इतनी ही नफरत है, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये दिखावा किस लिए कर रहे हैं? जन्नत अजलान को खुद के होठों पर झुकता देख बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे करीब आने का शौक है? ये तुम्हारी कुर्बत के लिए मरा जा रहा हूँ। अजलान जन्नत की कमर को सख्ती से जकड़े बोला, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्यों मुझसे ये रिश्ता बना रहे हैं? क्यों मेरे करीब आ रहे हैं? जन्नत चिल्लाई थी। चलाओ मत, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं जो यूं खला फाड़ रही हो। और रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो जानती हो ना, चंद घंटे पहले निकाह के पेपर पर साइन किए हैं तुमने, खुद सौंपा है मुझे, मलकीत हो तुम मेरी, वारिस हूँ मैं अब तुम्हारा। अजलान कहते हुए पूरी शिद्दत से जन्नत के लबों पर झुका। अजलान का लम्स इतना वहशियाना था कि जन्नत को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। जन्नत ने बेहते आंसू के दरमियान पूरी कुव्वत लगाते हुए अजलान को खुद से दूर धकेला था और कमरे से भागने की कोशिश की थी। इससे पहले कि जन्नत कमरे से निकलती, अजलान ने एक ही चेस्ट में इस तक पहुंचकर इसके अपनी बाहों में उठाई बेड पर बेदर्दी से फेंका था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारे जिस्म व जान पर तुम्हारे पर अजलान खान का हक है और आज मैं अपना हक तुमसे लेकर ही रहूंगा। अरजान ने लाल अंगार होती आंखों समेत कहा कि जन्नत का चेहरा अब लट्ठे की मान सफेद पड़ा था। इससे अजलान जन्नत पर झुकता, जन्नत साइड पर से होते निकलना चाहा। बेक वक्त अजलान ने इसके पांव को पकड़ते अपनी जानब खींचा और अपनी शर्ट उतारते हुए इस पर झुका था। अजलान, हाथ जानते हो, अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम इस कदर हौस परस्त और खुद गर्ज निकलोगे तो मैं यकीनन कभी तुमसे मोहब्बत करने की गलती न करती। जन्नत रोते हुए दांत पीसते हुए गोया, लेकिन अब तो तुम ये गलती कर चुकी हो ना, लिहाजा अब इसका हमार भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। अजलान सुलगते हुए लहजे में कहते जन्नत वो झुकता इसके और खुद के दरमियान हर पर्दा गिरा गया था। जन्नत ने मंदी मंदी आंखें खोली तो नजर सामने लगी वार क्लाकपुर की जो 9 बजा रही थी। इसे अपना सर बारी में से महसूस हुआ। जब नजर खुद पर पड़ी तो गोया जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया, क्योंकि इस वक्त जन्नत ने बेडशीट ओढ़ रखी थी। गुजरती रात का मनाजर इसके ज़हन में किसी फिल्म की मार चलने लगे थे। लाल बेती आंखों में समर्थ इसने अपना सर हाथों में गिराया। किस बात की असवक मना रही होकर? रात से कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? यही चाहती थी ना तुम, कर दी ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। अरजलान
जन्नत पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी, आवाज नीचे रखो अपनी, वरना जबान को दिल से खींच लूंगा। जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं 10 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। अजनान अपनी शर्ट का बटन बंद करते हुए बोला कि जन्नत ने फुल वक्त में इसकी नजरों से ओझल होना ही बेहतर समझा। जन्नत बोली, क्या तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? सबके लिए मुलाजमा है ना, तो क्या कर लेंगे? नाइला बेगम किचन में आई तो सामने ही जन्नत को चाय के कप में निकालते देखे बोली, ताई अम्मी अजलान ने कहा है कि नाश्ता तुम ही बनाओ, तो बस इनके लिए बना रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो कोई दूँ आपको? जन्नत ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा, नहीं बेटे, मैं और तुम्हारे ताया अब्बू नाश्ता कर चुके हैं, तुम अपने लिए और अजलान के लिए बनाओ, और मैं खबर लेती हूँ अजलान की, आज के बाद तुम किचन के किसी काम खास नहीं लगाओगी। हद होगी है भाई, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, उसने तुम्हें काम पे लगा दिया। नाइला बेगम अजलान को डबते हुए किचन से बाहर निकली, जबकि जन्नत गहरा सांस भर के रहेगी। व्हाट द हेल, ये चाय बनाई है तुमने? तुम्हें कुछ आता भी है? तुम्हें बनाने के लिए नहीं। अजलान तेज के आलम में कहते हैं चाय के जन्नत की जानब उछलाई थी, जिसकी बिना पर जन्नत की चीख बहसाते क्योंकि गरम गरम चाय जन्नत पर पाँव जला गई थी। ये टांग बंद करो और मेरा वायलेट दो मुझे। अजलान ने कोफे से जन्नत की जानब देखते हुए कहा, जो आंसू बहाने में मसरूफ थी। फौरन से साइड पर पड़ा वायलेट उठाकर अजलान को पकड़ाया कि जन्नत। अजलान ने एकदम ही जन्नत का बड़ा हुआ हाथ अपनी जानब खींचा, जिसकी बिना पर जन्नत इसकी गोद में आके गिरी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? जन्नत ने अजलान की करबत में हल्काते हुए कहा, मेरी एक बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लो, अगर तुम किसी के सामने रो के हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की ना तो क्या क्या करेंगे आप? हाँ, मारेंगे तो मार दे मुझे, ताकि एक ही दफ़ा मेरी आपसे और आपकी मुझसे जान छुट जाए। जन्नत हिचकियों से रोती ही बोली, मारूंगा तो सही, लेकिन ऐसे नहीं, तड़पा तड़पा के मारूंगा तुम्हें। अजलान ने कहते हुए जन्नत के जले हुए पांव पर अपना हाथ रखते हुए दबाया। इससे पहले कि जन्नत चीखती, अजलान ने सरस से इसकी सांसों को अपने गुलाम बनाया। कुछ पल के तोसुफ के बाद अजलान पीछे हटा था कि जन्नत निगाहें झुकाई किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। आखिरी बात, आज से मेरा काम तुम ही करोगी। मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो मुझे डिनर रेडी चाहिए। मैं अपने मामले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरदान सर्द सपाट ले में कहकर कमरे से बाहर की जाना बढ़ा, जबकि जन्नत सोफे पर दास सीगी। चले बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? कल तुम्हारा निकाह हुआ है, आज सुबह से तुम किचन में घुसी हो, क्या कर रही हो? नायरा बेगम से रात की खाने का कहने आई थी, जब जन्नत को किचन में टमाटर काटते हुए देखकर बोली, ताई अजलान ने मुझे कहा है कि अब से इनका हर काम मैं ही करूंगी, इसलिए मैं इनके लिए डिनर बना रही हूँ। जन्नत थके थके लहजे में कहा, चलो तुम्हें छोड़ो इसको और जाओ, जाके तैयार हो जाओ, कुक खाना बना लेगा। नायरा बेगम जैसे ही जन्नत का हाथ पकड़ा, इन्हें लगा कि जैसे इन्होंने किसी दलकती अंगार को छू लिया हो। जन्नत मेरी जान, तुम्हें इतना तेज आ रहा है? तुम हो कि किचन में खाना बना रही है बेटा, इन सब कामों के लिए ढेरों ढेर मुलाजम हैं, कर लेंगे। तुम बताओ मुझे, तुमने नाश्ता किया था सुबह? जन्नत ने सर को नफी में हिलाया तो इन्होंने इसी किचन में मौजूद ही चेयर कुर्सी पर बैठाते हुए फ्रेश और जूस गिलास में इसको निकाल के दिया और साथ ही इसे टेबलेट खिलाई। ताई अम्मी मुझे खाना बनाने देना जानती है। नाजलान गुस्से के तेज है, वो खफा होंगे कि खाना मैंने नहीं बनाया, खुद कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी बात। इससे तुम जा के आराम करो और रात में अरजान के आने से पहले अच्छे से तैयार हो जाना। मैं तुम दोनों का खाना कमरे में भिजवा दूंगी, ठीक है ना बेटा? आप बहुत अच्छी हैं ताई अम्मी, जन्नत मुस्कुरा कर कहती हुई ऊपर की जाने बढ़ गई। जन्नत अपने रूम में तो नजरें वाकरा पूरे जो 7 बजा रहे थे। 9 बजे तक अजलान ने आ जाना था, लिहाजा अभी 1 घंटा था, वो आराम से सो सकती थी। वैसे हुई दवाओं के जेर असर जन्नत को नींद आ रही थी। जब भी वो बेड की जाना बढ़ती, लेटते हुई आंखें मूंद गई। दानिया आजकल एग्जाम में चल रहे थे, इसलिए वो रात देर तक पढ़ती रहती थी। अभी वो कांच में बैठी बाइक की बुक खोले अपने लेसन सबक दोहरा रही थी, जब भी कमरे में दीबा बेगम दाखिल हुई। अरे आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, अंदर आए ना। बेटे मैं बस तुम्हें वही बुलाने आई थी, दरअसल असलान बेटा आया है, खाने का वक्त हो रहा है, इसलिए अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मामा अब वो क्यों आ गया है? दानिया ने काफी ज्यादा लहजे में कहा, तमीज से बात करो दानी, बड़ा है वो तुमसे, और क्यों नहीं आ सकता यहाँ? ये इसका घर नहीं है क्या? अब मैंने इसे क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं डिनर पर। ओके मामा आ रही हूँ, तानिया ने गिरफ्त सांस भरते हुए कहा और बुक पेट के बंद करते हुए वार्डरोब की जाना पड़ी। दानिया ने कुछ सरसरी निगाह खुद पर डाली। येलो और ब्लैक कलर के शार्ट फ्रॉक के हमरंग पेपरी से तन किए, बुरे बालों को खुला छोड़े, गहरी हिल्स आंखों में काजल डाले, लबों को शॉकिंग पिंक कलर के रंग से रंगे, अपने इसने कानों में छोटे बंदे पहने हुए थे, खुद पर परफ्यूम स्प्रे करती इसने बेड पर बड़ा दुपट्टा उठाते ड्रेसिंग टेबल के साथ रखे ब्लैक कलर के खुद से जेबतन करते नीचे की जानब बढ़ी थी। जन्नत की आंख खुली तो वो 9 बजने में आधा घंटा बाकी था, लिहाजा जल्दी से बेड पर से उठी, वॉशरूम की जानब बढ़ी। 15 मिनट बाद वो नीम
गर्म पानी से शावर लेते बाहर आई। ब्लैक कलर का लंबा फ्रॉक जेबतन किए गीले बालों को ड्राई से खुश कर रही थी। फ्रॉक का पिछला गला डीप होने की वजह से इसकी आधी कमर वाजी हो रही थी। ये फ्रॉक दानिया ने ही इसके लिए खरीदा था। बालों को खुश करते इसने सुनहरे बालों को यूं ही छोड़ दिया था। नीली आंखों में काजल डालते इसने लाल रंगों को मजीद लाल रंग से रंगा था। जूली बॉक्स में से बल्कि ब्लैक कलर की आवाज़ें निकाली। इन्हें पहनते हुए से खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया। वाटररूम से ब्लैक कलर की हाई हील्स निकाल के पहनी थी। एक नज़र खुद पर डालती वो हुस्न का बेगर थी और इतनी दिलकश और खूबसूरत थी कि हर कोई इसकी चाह कर सकता था। फिर इस्लान ने इसे क्यों ठुकरा दिया? जन्नत इन्हीं सोचों में गुम थी जब अरसलान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। जन्नत का दिल बेसाख्ता यकबारियों से धड़कने लगा। जन्नत रुख मोड़े गहरी गहरी सांस लेती, हाथों को मरोड़ती कंफ्यूज सी खड़ी थी। बेक वक्त अरसलान कमरे में दाखिल हुआ। जैसे जैसे अरसलान जन्नत के करीब आता जा रहा था, धड़कने इतनी मुश्किल आ रही थी। ये इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? अरसलान ने घबरू लहजे में कहते जन्नत के पास से उठती बनी बनी खुशबू अरसलान ने अपनी सांसें में जज्ब की थी। वो ताई अम्मी ने कहा था तैयार होने को, इसलिए ताई अम्मी ने कहा और तुम हो भी की। वो इससे पूछना गवारा नहीं किया ना? अरसलान ने हमार ज़्यादा लहजे में कहते जन्नत को कमर में हाथ डालकर जन्नत सख्ती से अपनी आंखें मीच की थी। इससे पहले कि जन्नत कुछ कहती मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब भी अरसलान पीछे हटा। आ जाएं। जन्नत के कहने पर मुलाजिमा खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई थी और रख कर जा भी चुकी थी। ये सारा खाना तुमने खुद बनाया है? अरसलान ने जन्नत के खूबसूरत चेहरे की जानब देखती हुई कहा। नहीं, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ताई अम्मी ने मना कर दिया, कुक नहीं बनाया है। जन्नत साफ गोई से गोई ही ठीक है, ये खाना वापस लेके जाओ और मेरे लिए चिकन चीज़ पास्ता बना के लाओ। अरसलान ने सर लहजे में कहा। लेकिन अरसलान, ये सारा खाना कहाँ जाएगा? मेरी बिला से फेंक दो, लेकिन तो खाना तुम्हारे हाथ का ही खाना होगा। मैं अरसलान ने देश भरे लहजे में कहा कि जन्नत नीली आंखों में खौफ लिए नीचे की जाना पड़ी थी। ये क्या दानिया बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? सकिया बेगम दानिया को प्लेट में चम्मच चलाता देख बोली, जो कि कम और सोच ज्यादा रही थी। जी ममानी, खा रही हूँ। दानिया घबरा कर गोया हुई कि अरसलान ने इसको गहरी निगाहों से तका था। चाचा जान, आप सभी लोग यहाँ हैं तो आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरसलान दानिया पर एक गहरी निगाह डालते ही गोया हुआ। हाँ बेटा कहो, क्यों नहीं, जरूर कहो। चाचा जान, दरअसल मैं दानिया से शादी करना चाहता हूँ। अरसलान की बात सुनते दानिया को पानी पीते और छूट लगा। आराम से बेटे, आराम से। दीबा बेगम दानिया की कमर फैलाते हुए कहा। देखो बेटा, तुम्हें भाई और भाभी से इस बारे में बात की है, इन लोगों की क्या राय है? वासिफ खान ने संजीदगी से कहा। वो लोग भी यही चाहते हैं एंड आई एम श्योर इनको भी कोई इतराज़ नहीं होगा और लोग खुद भी मेरे साथ आते, लेकिन डैड की तबीयत कुछ अपसेट थी इसलिए वो नहीं आए। अरसलान साफ गोई से गोया हो। अरसलान बेटा, तो अब आप क्या चाहते हैं? दीबा बेगम अरसलान को देखते हुए बोली। दरअसल अरसलान इनको भी बहुत पसंद था। दीबा बेगम भी शुरू से यही ख्वाहिश थी कि दानिया अरसलान की धुन बने। फुप्पो, मैं वादा करता हूँ आप सबसे कि दानिया को बेहद खुश रखूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले सादगी से निकाह हो जाए, फिर जब दानिया की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो इंशाल्लाह रुखसती कर लेंगे। एहसान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए हो, लेकिन मुझे एतराज़ है इस चीज़ से। मैंने कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा कि आपने शादी करना, तो प्लीज़ आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें तो अच्छा होगा। दानिया स्पॉट जब गोया होती है, टेबल से उठती हुई लाइन की जाने बढ़ गई, जबकि असलान शेरबाज नगाहों से इसकी फर्श को तका। सॉरी बेटा, तुम जानते हो ना वो कितनी ज़िद्दी है, मैं समझाऊंगी, इसे मान जाएगी वो, तुम परेशान मत हो। दीबा बेगम बात को संभालते हुए गया। नहीं पापा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं खुद मनाऊंगा दानिया को इस बात करने के। असलान बामुश्किल मुस्कुराते ही गया हुआ। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी अगली किस्त के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।